क्लास में भी डिस्कशन करेंगे कि हम एडिक्शन के बारे में कितना जानते हैं और एडिक्शन हमारी लाइफ का एक किस प्रकार का हिस्सा है। लाइक हम उसके बारे में क्या सोचते हैं, हम उसमें से निकलने की सोचते हैं या रहने ही की सोचते हैं, या जानते बूझते भी निकल नहीं पाते हैं। सो वील टॉक ऑन दिस काइंड ऑफ एसेट्स एंड मैं थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ों के बारे में भी बात करूँगी। इनफैक्ट हमारे पास कुछ यहाँ डॉक्टर्स भी हैं, हीलर्स भी हैं। सो अगर मुझे कहीं हेल्प चाहिए होगी तो मैं ले लूँगी आपसे। मेरा नाम निमिषा है, मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, साउथ बॉम्बे में प्रैक्टिस करती हूँ। करीब 12-13 साल हो गए हैं। मुंबई में आए हुए मुझे 3 ही 4 साल हुए हैं। इसके पहले मैं बैंगलोर में थी, अहमदाबाद, बड़ौदा, ये सब जगहों पे मैंने प्रैक्टिस की हुई है। लेट्स सी मुंबई में कितने साल हैं, क्या हैं, कब तक हैं? जब तक हैं तब तक हैं यहाँ दाना पानी, जब तक दाना पानी है। सो आज हम लोग बात करेंगे एडिक्शन के बारे में। वी गोइंग टू टॉक अबाउट एडिक्शन। वी हैव सम गेस्ट्स हु विल अंडरस्टैंड इंग्लिश, सो वी विल टॉक इन इंग्लिश ऑल्सो, दैट विल बी गुड। I make it a point basically कि I talk in Hindi also, so that many people who are not able to understand fluent English, you know, they are still part of the session. So what do we understand by addiction? When we say addiction, you'd like to come on ahead. Anyway, just ahead. When we say addiction, ma'am, would you like to say a sentence on addiction? Like, what do you feel is addiction? Okay, a bad habit without which you cannot live without. ये हमारा perception हो जाता है। जी। Okay, a habit which is repetitive, which we keep on repeating again and again. Yes, Dr. Dinesh, you'd like to say something? Okay, sir. Same thing. Haven't unable to carry it out. Okay, Om ji. Same. Same thing. What do You get attached to a thing. Okay. You may think that it's not good for you. Okay. And yet you can't go on without it. Right. So we get attached to a particular habit. Okay. Yes, that's a lovely word. He uses a word called dependency. That is a very major culprit when we talk about addiction. Habitual. So habitual in the sense we become codependent on a habit, wherein we find it difficult to survive without it, or we also go through lots of symptoms in our body and in our thinking, mind, cognition, because we are not able to get ourselves out of it. If we don't get that particular thing for which we are habituated, now it can be various things. Many people feel that addiction is just for alcohol, it is just for drugs, or it is just for nicotine, smoking. But there are various kinds of addiction we are addicted to. In fact, the biggest problem which I come across in my clinical practice these days is internet addiction. People are just internet on mobiles, internet on screen, internet on iPad, internet anywhere, everywhere. You know, there's a very strong, yeah. So there are various kinds of addictions. So we'll talk about these today. So over here, there's the same thing which we discussed. Compulsive, uncontrollable. We become a slave to it. हम गुलाम हो जाते हैं किसी एक particular habit के, आदत के. Unconscious, often inclination to perform that act. We are so much into it that we don't realize the repercussions. Yeah. Liability, there's a potential tendency develop हो जाती है for that addiction. Yes, the body craves for it. That's why we say that potential thing is developed now. Now, what I understand by addiction as a practitioner in so many years is, yes, addiction is a brain disease. Many of us are prone to addiction and many are just not affected at all. For example, you will find many people who drink, but they don't go overboard. They are able to control themselves. They drink within limit. Or maybe once in a while they drink too much, but then for months they don't drink at all. You'll find various people, you know, who do this, but they cannot be called addicts because they are not dependent on it. They are not slaves of drinking. So yes, some of us who become addicts
who become dependent on a particular chemical or substance have a brain disease. The research proves that addiction is a brain disease. That some of us have such chemicals in our brain, or we have them within us, that we are more prone to getting addicted. And it is also day by day coming out to be a genetic disease as well. Like if it's running in a family, there are chances that we are more prone to get addicted to it. For example, a child whose father, mother both are alcoholic or into some kind of addiction differently, that child will be prone to, there are more chances of that child getting prone to addiction. Now there can be various factors. There can be friends, peers, age of that child, the emotional setting of the environment in the family. These all can be various things which can be a very major component in aggravating that addiction or catalyzing that process of getting addicted. But it is not certainly a case wherein a person can be completely relaxed and not be careful about. The families which have addiction going on in them for some time, they certainly need to keep in mind that the offsprings, the children which are going to come up, are going to be having that risk of getting addicted. So I see it as, yes, as a clinician, as a very treatable problem. Krishnakanji, come on. It's okay, I'll let you leave. Don't worry, I'll not stop you. Come. I see it as an antisocial problem. Just 2 days back, behind my building, there was a alcoholic person who was like suffering from alcoholism, and for till 2 o'clock at night he was lying down on the road creating a lot of ruckus, shouting, crying. Finally at 2 o'clock I had to call up Baikala police station and tell him, please take them, tomorrow my son has school here. So, and of course it probably would have been still okay if he was just lying. He was shouting, raving, he was abusing many people who were, probably in his mind, his thoughts, whatever. He was very disturbed, could see it, but those things were coming out in his addicted state. And so naturally the society, the people around us, most of the time you see some have a lot of patience, they don't do anything about it. Some of us like me would rather pick up the phone and find out how we can get them probably in a place where they don't disturb everybody. So I do see it as an antisocial problem. I do see these personalities who sometimes tend to cross their boundaries and hurt or disturb other people's lives. Even their own family, of course. The people who are part of a person who's addict family, they are most of the time stressed because of addiction. So I see it as a treatable disease. I see it as an antisocial problem. It is life-threatening if it goes on for years and years. It ends up damaging your vital organs, your liver, your kidney, various things. It's a precursor to various diseases like high blood pressure, heart stroke, seizures. Yes, it is a family illness, and I'll share with you how it is a family illness just now. So many people ask me, Nimisha, how do you say it is a family illness? It is a complete family illness. You will not find any family whose member is an addict not suffering from various different kind of issues. Somebody or the other in the family will be having some or the other issues. Either the wife, either the mother. People are completely under that stress. And maybe because I'm a mental health professional, I give more emphasis to this part. That when you are addicted, your family suffers along with you most of the time. Yes, it causes relationship conflicts also. Why do I say it's a family disease? Check it out. I call it a family disease because, yes, everybody has got their own ways of finding respite, finding, de-stressing habits. Arguments, very normal. Guilt will always be there. Stress, defensiveness, mood swings. You'll find lots of these things. Relationship issues, probably because the various symptoms which addiction brings about, once it enters your life, it certainly has issues with decision making, memory. It has issues with giving commitments, not keeping them, not being on time to various places, not being enough empathetic or sympathetic towards family members, because you're so dependent on a particular thing that you forget that part of your life. And naturally, family members expect you to be there around for them. Depression, rage, these are very common things which happen in that family.
Now, I would want you to have a look at this diagram. This is basically a diagram which shows that what and how do neurotransmitters work in our body. Now, these, I'm using a very technical term over here, neurotransmitters. I know it is difficult to explain or to understand that. But again, when I look at this term, there are certain chemicals in our body which are responsible for our pleasure, for our pain, for our depression or our low mood, for the kind we are motivated or happy in our lives, or we become a reason for being a happiness quotient for another person's life. There are certain chemicals which certainly, are the major ones which are there. Now, for example, arousal. Where do you need arousal in your life? Omji, where do we need arousal? We need that fire in us. We need that arousal. Even for sexual activities, we need arousal. Yes. Where do we need fantasy? Creativity. We need fantasy and creativity. We also need fantasy to, even be able to understand what we would like to do or make the other person happy or be happy ourselves in the long run as life goes. Where all do we need this reality related stuff, wherein we have to accept practical facts of life? So these are all there because of certain different chemicals in our body which are called neurotransmitters. Yeah, I'll explain to you in more detail. Some of them, like for example, some of them can bring about apathy also. I have seen various people suffering from addiction. Their wife is crying and they are carrying on drinking or whatever. They become apathetic. The family keeps on raving, shouting, arguing. They are busy in their addiction. So after a point of time, you become so apathetic towards them that you don't realize their pain and sorrow. So there are all these neurotransmitters which are related with addictions and in turn cause a lot of mental illnesses in our lives. This is a very, very extensive kind of a diagram. I'm going to explain it to you more. What are the types of addictions we are going to talk about here? We were talking about addiction. Some of them we know, some of them we've heard of. Alcohol, substance abuse, nicotine, prescription drugs, even they are addictive. Many such drugs. Benadryl, yes. Food, addictive foods. McDonald's burgers, very addictive. US, UK. So Indian is about vada pav and pakoda. For Mumbai, yeah. Behavior addictions, yes. Gambling. I have seen even milk becoming An addiction, yes. Relational, pornography, technology as I mentioned. So various things which, probably can just go into the extreme line of enjoying or becoming a sole purpose behind living can be termed, like for example, people who are suffering from obesity, very high weight, they do have a lot of craving for such foods which cause further obesity or probably push them towards the dangerous side of physical illness. Now, I was talking to you about different neurotransmitters. There are certain 4 kinds of neurotransmitters I'm going to talk about over here. The first one is acetylcholine. Now, this is responsible for your sleep. Yeah, the dreams which you have in your sleep, the sleeping condition. I'm not going to go into too much of technical stuff because I know everybody is going to go to sleep. So we are not going to go into that, but yes, these are the ones. You can even search out and read on them. Dopamine, a very, very important chemical in our brain, yes, which is found in cocaine, opium, heroin and alcohol. Yes, it also has, it's there in nicotine also. Yes, it is responsible for your pleasure based feelings, all your emotions which say that you're happy, now you're feeling very ecstatic. So those kind of feelings are there because of dopamine. No, dopamine. Dopamine has different, yeah. So endorphin, again, now that is responsible for your pain reduction and pleasure. Some chemicals, some drugs have endorphin, and so they make you feel very pleasurable, or they let you forget your pain for a while when you are under their effect. The fourth one is serotonin.
another, it's an inhibitory neurotransmitter. When you have less serotonin in your body, then it leads to depression. What? You have less? Serotonin in your body, then it leads to depression, problems with anger control, obsessive compulsive disorder, and even it leads to suicide. It's a very, very important chemical in our body, and it often makes people feel very low, not feeling like doing anything, not participating, and in a way antisocial, not meeting people or going about with their work, very dull. Trouble in sleeping also, emotional disorders come about. Even your perception gets affected because of serotonin levels. In simple language, if I explain you, neurotransmitters are the chemicals that move between nerve cells to transmit messages. We have a nerve body over here, which you can say is the CPU system of your body. Just like in the computer you have the main system. Yes, central processing unit. So that from there your nerves transmit and receive various kinds of responses. So neurotransmitters are responsible for these kind of transmitting work. If the message is blocked or replaced, there will be a change to the physiological system, and this in turn will affect mood, behavior and cognition. I'll give you a very small example. There are patients I have who tell me that, you know, when there is a marriage in the house, we don't feel like going and enjoying. I don't feel like meeting people. Now, normally, a situation where a marriage is there, what is that situation? Is it supposed to be a happy situation in life? Some two people are getting married. Now, whatever may be the reason, your definition of marriage or your experience of marriage may not match. But sociologically, marriage is supposed to be a communion of two people who are going to spend their life, come up with offsprings, live a licensed life with happiness. Now, even though your definition may match or not match, the society expects you to be part of it and enjoy it. Now, when you are under the effect of certain neurotransmitters, you will not be able to go over there and enjoy yourself in that situation. Why? Because either you will be analyzing it, marriage to wo laddu hai, जो खाएगा वो भी पछताएगा, ये खा रहा है ना, अभी देखना थोड़े दिन बाद पछताएगा. What am I doing? My thoughts, my emotions are blocking me from enjoying a very normal social situation. It's not letting me go and mix with people. It's not letting me smile. It's not letting me enjoy life. कई बार लोग बोलते हैं कि निमिषा इसका क्या लेना देना है. इसका बहुत सिंपल लेना देना है कि जब आप अच्छे मूड में नहीं होते हैं, जब आप दुखी हैं या किसी बात में लो हैं, तो आपको औरों का एंजॉयमेंट भी अच्छा नहीं लगता, आपको नॉर्मल चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती, आपको आपकी मनपसंद चीज़ भी खिलाई जाए तो आप उसे एंजॉय नहीं करते. दिस इज कॉल्ड ब्लॉकिंग. दिस इज हाउ यू ब्लॉक योर सेल्फ फ्रॉम एंजॉइंग लाइफ. So this is a very simple example. You will find people who have issues with their neurotransmitters who will not be able to enjoy normal, happy situations with other people. This type of people, they are isolating themselves. They isolate themselves. Why? Because they block themselves. वो खुशी वाले इमोशन को आने नहीं देना चाहते हैं. या तो वो बहुत ज़्यादा उसको सोचते रहेंगे, रुमिनेट करते रहेंगे, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते रहेंगे. नो नो नो, it's going to be very boring, it's going to be very noisy, ये होगा. I don't think noisy, boring, they can even stop you if you want to go and enjoy in a situation. But basic blocks are there within your mind. They are in your thoughts. They don't let you enjoy a normal situation which can be enjoyed. Your behavior, your cognition of that particular situation is going to change. I'm going to talk about a drug. I'm going to talk about certain drugs over here now. The first one I talk about is cocaine. Cocaine is a drug which is found in cocoa leaf. Yes, various different things it is found in: cement, ammonia, calcium oxide, sulfuric acid, petrol. In सब में cocaine होता है. It is derived out of cocoa leaf. When a person starts having cocaine, the short-term effects of cocaine are increased blood pressure, constricted blood vessels, dilated pupils. So many times I recognize my clients by this, dilated pupils. When they are going through treatment and in between they have a relapse, I'm able to find out that this person is sitting in front of me, probably his pupils are dilated, so I'm able to find that. Increased heart rate,
एनर्जी बढ़ जाती है कोकीन लेने के बाद. You feel very energetic. I have clients who specially go and meet their friends when they are under the effect. Otherwise, they don't go and meet. When they are going inside the building, they'll specially say hello to people whom they have not met from 2-3 months. Hello sir, kaise hain? How are you? The typical effect of when you are under cocaine. You are feeling very energetic and you're in that exhilarated mood, enjoying in your, euphoria. Is stimulating our Heaven. Om ji keh rahe हैं ना कि they feel they're in heaven. Yes, they're self-created heaven. Yes, appetite decrease हो जाती है, mental alertness पे फर्क पड़ता है. Many people lose their mental alertness. Like for example, under the effect of cocaine, maybe your cell phone gets robbed in a crowded place and you will not get to know, or you lose your stuff somewhere. You've kept something and you'll forget. Why? Because your mental alertness is affected. Long-term effects of cocaine physiologically: heart disease, heart attacks, respiratory failure, stroke, seizures of course, gastrointestinal problems. A person who's been taking cocaine for years and years through starts facing lots of issues with his bowel, with his digestive system. Probably keeps on getting prone to bad stomach, diarrhea, loose motions, a little bit of outside food, or even sometimes homemade food also starts affecting. Why? Because the intestines start getting affected very, very badly. I would want anybody, if I am losing any important fact, to point it out to me in case anybody has some experience, or technically अभी आप में से कई लोग जानकार हैं, तो certainly you are allowed to speak here and share your inputs. Yeah, Dr. Sab, feel free. Convulsions, nausea, muscle spasms, blurred vision, chest pain, sweating, fever, coma, ये सारे आपके long term effects हैं. जी sir. Are there only bad effects or are there some good effects also? Of long term effects, when cocaine is used as a medicine, it has. But again, if it's used as a prescribed medicine, cocaine, most of the time we are not aware. Certainly it's derived from cocoa leaves. Yes, there are various drugs which have cocaine, but again, as I said, they are prescribed drugs. They need to be used for over a period of time. They cannot be used for achieving self-perceived pleasures. All the drugs which we are going to talk about here have some side effects and have long-term bad effects, but yes, they are drugs which are also used in some medicines. Like there are drugs which are used for curing schizophrenia. There are drugs which are used for, in various diseases also they are used. But again, we are talking about addiction. What is addiction? Let us come back to that topic again. Yeah. Dependency. Yes, so when we use a drug for a good purpose, for a better purpose, it is not addiction. When we are going to face bad effects, symptoms, our body is deteriorating, then it is called addiction. So we have to remember this fact all through. When does taking or using a substance become addiction? It's not like, that I have maybe one drink in a week and I'm an alcoholic. Or maybe I'm a social drinker, so I'm not an alcoholic then. But yes, if I cannot go one evening without my drinking and I call myself a social drinker, then there's a big question mark. Maybe my social drinking is getting too personal now. Yes? So that line has to be drawn where now it has started affecting your system. Long-term effects psychologically, of course, addiction is there, paranoia, irritability, restlessness, auditory hallucinations, you start hearing stuff. कानों में आवाज़ें, कुछ सुनने में आने लगता है. Yes, mood disturbances. कब आप किसके ऊपर नाराज़ हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, mood swing हो जाएगा. Irritate, you'll be irritated with people. So these are the psychological effects, and I'm sure all of them affect the family life. ये सारी चीज़ें अगर किसी के behavior में हो जाएं, तो automatically family के लिए survive करना बहुत बहुत tough हो जाता है. Ecstasy, ये भी एक drug है. ये तो श्योर है कि आप में से जो यहाँ बैठे हैं और अगर उनको बहुत ज़्यादा एडिक्शन के बारे में नहीं पता है, तो आपके लिए इसमें से कुछ ड्रग्स ऐसी होंगी जो नहीं होंगी.
बट द पर्पज़ बिहाइंड ऑल दीज हेल्प सेशंस आ कि आपके थ्रू किसी को जानकारी मिले, और ये जो वीडियोज़ यहाँ प्लेस होते हैं वो ऑल अक्रॉस पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड ट्रैवल हो, and people get to know about it. So I have not, deleted this drug over here. You may not know about it, but yes, we clinicians know about it. Ecstasy is a drug जिसकी वजह से confusion हो सकता है, sweating, chill, ठंडी sensations जिसे कहते हैं ना, हम एकदम से ठंड लग रही है, panic, डर लग सकता है. इनफैक्ट मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दूँ एक्सटेसी का. ऑफ लेट बॉम्बे में पार्टी सर्कल्स में एक्सटेसी ड्रग बहुत यूज़ हो रही थी. पार्टी सर्कल्स में, बॉम्बे की रेव पार्टीज़ में, ड्रिंकिंग पार्टीज़ में लड़कियों के ऊपर एक्सटेसी ड्रग बहुत यूज़ हो रही थी. उनको किसी चीज़ में मिला के दे देना और फिर उनको किडनैप कर लेना या उनके साथ कुछ गलत हरकत करना, सेक्सुअल अब्यूज़. वहाँ पे एक्सटेसी बहुत यूज़ हो रही थी. एंड काफ़ी न्यूज़ में भी आ रही थी कि अगर आपको कोई सो नॉट टू मेनी पीपल नो अबाउट इट बिकॉज ऐसे नहीं यूज़ होती है, लेकिन येस पीपल हु आर इनटू एडिक्शन दे नो अबाउट दिस ड्रग. नॉजिया, एंग्जाइटी, अगेन ओवर द लॉन्ग पीरियड अगर आप ले रहे हैं तो रिड्यूस्ड एपेटाइट, पैरानिया, टीथ क्लेंचिंग, दांत भींचना अक्सर हो सकता है. स्लीप प्रॉब्लम्स, नींद नहीं आएगी सही तरीके से, कंफ्यूज रहेंगे, अपने डिसीजंस नहीं ले पाएंगे. लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स एक्सटेसी के हैं, डिहाइड्रेशन बॉडी में, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, या ऑल दीज डिजीजेस which are caused by addiction, they so many times have other diseases, comorbidity जिसे हम लोग कहते हैं, वो भी होती है साथ में. यानी इनके साथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एडिक्शन में हैं और आपका लिवर फेल हो रहा है या लिवर के साथ कुछ दूसरे इश्यूज़ भी होंगे, डिप्रेशन हो सकता है, या एक पे कई फ्री हो जाते हैं एक्चुअली. सो दैट इज सर्टेनली गोइंग टू कम अबाउट. इट इज़ ऑल्सो अ डिजीज़. वी कैन गेट इनटू डिटेलिंग ऑफ एवरीथिंग जब भी हमारा सेशन खत्म होता है, बिकॉज उसके लिए थोड़ा सा कम समय रहेगा. आई वॉन्ट टू कंप्लीट दिस. डिहाइड्रेशन, हाइपरटेंशन, हाइपोथर्मिया, इनफैक्ट इनके ऊपर यहाँ नीचे लाइब्रेरी में बुक्स भी बहुत अच्छी अच्छी अवेलेबल हैं. वेन एवर यू कैन टेक आउट टाइम एंड सिट एंड स्टडी देम. इट्स वेरी नाउ अनदर ड्रग इज मैरिजुआना. मैरिजुआना इज ऑल्सो अ ड्रग विच इज़ वेरी वाइडली यूज्ड. इसके शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स हैं डिस्टॉर्टेड परसेप्शन, यानी कि जो समय है, टाइम है, थॉट है, उसके हिसाब से हमें कुछ और फील हो रहा है. वी आर हैविंग आवर ओन परसेप्शन टुवर्ड्स इट. ये सही समय है कि नहीं है, ये गलत समय है, या किसी के टच को लेकर, किसी की फील को लेकर, किसी थॉट को लेकर वी कैन हैव अ डिस्टॉर्टेड परसेप्शन. प्रॉब्लम्स विद मेमोरी एंड लर्निंग, याद रखने में डिफ़िकल्टी हो जाती है जो लोग मैरिजुआना लेते हैं. मेमोरी एज सच ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कोकेन, marijuana, ecstasy, all these medicines, all these drugs are going to cause memory issues to anybody who's addicted to it. Over the long period they'll start forgetting things. Loss of coordination because हमारे reflexes affect हो जाते हैं, इससे numb हो जाते हैं, right. Increased heart rate, blood pressure low होना, reduce होना. Trouble with thinking and problem solving, but obvious. जब आपको perceptive issues हैं, जब आपको चीज़ों को समझने में, उनको परसीव करने में इश्यूज़ आ रहे हैं, याद रखने में इशू आ रहे हैं, एक ही चीज़ याद रहती है, ड्रग्स. यस, समा उसका मेमोरी लॉस नहीं होता है. यस, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स, हैलुसिनेशन, जो नहीं है वो दिख रहा है, डिल्यूजन, जो है ही नहीं उसके बारे में सोच रहे हैं, डिल्यूजन में रह रहे हैं अपने अपने, डिसओरिएंटेशन. मैरिजुआना कैनबीज लीव से मिलता है, extracted from cannabis plant. Disorientation, daily cough and phlegm production. जो लोग मैरिजुआना के शिकार हो जाते हैं उन्हें कॉफ बनने की बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं. Yes, increased risk of lung infections, breathing, yes that's what, lung infections, respiratory issues आ जाते हैं, obstructed airways, you have a difficulty in breathing properly. Acute chest illnesses, naturally when your lungs are affected, then automatically lungs form your region of chest. Heroin is another one. Poppy कहते हैं जिसे हम opium poppy. मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैं इतने सारे जगहों पे रही हूँ इंडिया के. अभी मैं
जनरली क्या करती हूँ, मेरा जो क्लाइंट मेरे पास आता है और बातें करता है, मैं उसकी टर्म्स में ही उससे बात करती हूँ. आई टेल यू वाई. बिकॉज इंडिया में हर प्रांत का अलग एक नाम है हर चीज़ के लिए. तो इसीलिए मेरे से जनरली जब इस तरह के पब्लिक फोरम में कोई नाम पूछता है तो मैं नहीं वहाँ बोलती हूँ. हाँ, आप अकेले में मुझे मिलिए तो मैं आपसे बात करूँगी कि मैंने बॉम्बे में इनके लिए क्या नाम सुने. यानी काले वाले मंजन को कोई यहाँ पे मसाला कहता है, कोई कुछ कहता है. मैं जब गुजरात में थी तो वहाँ कुछ और कहते थे, बैंगलोर में उसको कुछ और कहते हैं, you know, कीनिया में people call it something else. So I don't want to get into that इस फोरम में, but yes, you can always talk to me separately. जब हमारा ये सेशन ख़त्म होता है, you want any clarification या किसी का डिटेल, we can do it. Yes, प्याज को हम कांदा बोलते हैं यहाँ पे, नॉर्थ में हम प्याज ही बोलते हैं. कई डिफरेंट नाम है हर जगह के. सो मैं जनरली उसमें नहीं जाती हूँ, बिकॉज क्या होता है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, फिर उसमें टर्मिनोलॉजीज़ को लेके क्लैश होता है. राइट. सो हम लोग इसीलिए प्रेजेंटेशन में जो ऑल अक्रॉस एक्सेप्टेबल टर्म्स हैं वही यूज़ करते हैं. तो हेरोइन स्लो गेट, आपके चलने फिरने में एक स्लोनेस आ जाती है इस ड्रग की वजह से. स्पीच यानी हमारी ज़ुबान जो है वो स्लरी हो जाती है, लड़खड़ाने लगती है. यस. कंस्ट्रिक्टेड प्यूपल्स, ड्रूपी आईलिड्स. एक में डायलेटेड प्यूपल्स था पहले वाले में, रिमेंबर, कोकेन में, और इसमें कंस्ट्रिक्टेड यानी आपको उनके प्यूपल्स छोटे 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 दिखेंगे और एक में थोड़े बड़े दिखेंगे. सो यू कैन सी द डिफरेंस. सिम्टोमैटिक. इम्पेयर्ड नाइट विजन, रात में देखने में परेशानी होने लगती है. रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और फेलियर. इचिंग स्किन, स्किन इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा इसमें कॉमन होते हैं हेरोइन के एडिक्शन में. इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस डिजीज़, बिकॉज हेरोइन जो है वो इंजेक्टेबल होती है जी. तो कई लोग वैसे भी जितने भी एडिक्शंस इंजेक्शन से लिए जाते हैं वहाँ पे देयर इज़ अ हाई रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ लाइक HIV या लाइक हेपेटाइटिस. सो ये सारी डिजीज़ होने के डर हमेशा बने रहते हैं, बिकॉज आप इतने ज़्यादा उस डिजीज़ के अफेक्ट में होते हैं दैट यू आर नॉट हाइजीनिक. You may end up using any kind of injection anywhere. So that leads to various other issues. Alcohol. Let's talk about the most common of addictions. Low doses में ये हमें बड़ा अच्छा फील कराता है. मैंने खुद भी फील किया हुआ है, मतलब तो मैं आपके साथ शेयर भी कर सकती हूँ. अच्छी सी फीलिंग आती है, सूदिंगनेस. कैसा लगता है कृष्णकांत, कुछ शेयर करिए. आप लेते नहीं हो बिल्कुल, कैसा फील कैसा होता है? लो में मॉडरेट की है कुछ, एक ml कुछ है ना उसका, कितना है? 30 ml है, 60 ml है? 30 ml है. ओम जी आप भी लेते हैं डेली? वेरी गुड, दैट्स गुड फॉर हेल्थ आई गेस. रिलैक्सिंग इफेक्ट, रिड्यूस टेंशन. तो एक प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी है जो कि अगर हम रोज़ लेते हैं तो उससे कोई एडिक्शन भी नहीं होता है और उससे कोई लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स भी नहीं है. बट ये जनरली जो लोग इसके एडिक्ट्स हो जाते हैं वो क्वांटिटी में नहीं ले पाते हैं. वो फिर वो अपनी क्वांटिटी पटियाला बनाते हैं और उसमें लेते हैं और उसमें रहते हैं. सो येस, ओवर द लॉन्ग पीरियड एक रिलैक्सिंग इफेक्ट फील होता है. थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेशन में इशू आता है, पर आप लो डोज लेते हैं तो भी आप कार वार चला लेते हैं, पर हाई डोज लेते हैं तो हम फोकस करने में प्रॉब्लम होता है. रिएक्शन टाइम, किसी ने आपसे कुछ कहा या आपसे कोई बात करी तो वो थोड़ा इम्पेयर्ड हो जाता है, तो हमें हाँ तो वो हम ध्यान लपड़ तो कोऑर्डिनेशन रिड्यूस हो जाता है. मीडियम डोजेस में स्पीच अफेक्ट होने लगती है, हमारी क्लैरिटी जो हम बात करते हैं वो अफेक्ट होने लगती है. ड्राउजीनेस, नींद सी बनी रहती है हमेशा. इमोशंस बहुत अलग अलग तरह के, नॉर्मल सिचुएशन से हट के इमोशंस होते हैं हमारे. हाई डोजेस में ऑफ कोर्स वॉमिट द मोस्ट कॉमन, ज़्यादा पी ली, कॉकटेल पी लिया, बेड वेटिंग, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज, अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी. तो ऑफ कोर्स कोमा में भी लोग चले जाते हैं जब एट अ हायर डिग्री बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो ऐसा होता है. लेट अस सी हमारे ब्रेन को, एक कंट्रोल्ड पर्सन का ब्रेन कैसा है और एक अल्कोहलिक का ब्रेन कैसा है. यू कैन सी द सेंटर पार्ट ऑफ द ब्रेन.
ये ब्लैक वाला पोर्शन वेंट्रिकल्स कहते हैं इनको हम लोग. एंड यू सी अल्कोहलिक में वेंट्रिकल्स कितने इनलार्ज हो जाते हैं. दिस इज बेसिकली अ डिज़ाइन बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग अब्यूज़. इंडिया में अभी भी ड्रग के ऊपर उतना काम नहीं होता है जितना US एंड UK में प्रेवलेंट है. वहाँ पे बहुत ही सिवियर डिजीज़ है ये. इनफैक्ट अ वेरी लार्ज क्वांटम ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम इट. सो वहाँ पे काफ़ी काम हो रहा है इसके ऊपर. कैफीन अनदर ड्रग. कैफीन किस में पाई जाती है? कॉफ़ी, टी, यस, चॉकलेट. इंक्रीज अलर्टनेस. एक चॉकलेट खाइए और फिर आप देखिए कितने अलर्ट हो जाते हैं. जहाँ नींद आ रही थी, बोरिंग लग रहा था. शुगर इज ऑल्सो देयर बट शुगर इज नॉट इन. कैफीन नहीं होता है शुगर में. शुगर इज जस्ट ग्लूकोज. दैट जस्ट इट इज बिकॉज ऑफ, बट इज बिकॉज ऑफ कैफीन ऑल्सो. कैफीन भी अलर्टनेस बढ़ाता है. एंड ऑफ कोर्स जब उसमें चीनी है और शुगर है तो भी उसमें जी उसमें है कैफीन जी. रिड्यूस फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन. अगर आप इसके एडिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा ले रहे हैं कैफीन, तो आपका फाइन मोटर, यानी फाइन मोटर सिंपल एग्जांपल पेन उठाना या उंगलियों से काम करना या किसी चीज़ को कंसंट्रेट करके हाथ कांपना, एक हमारा कई चीज़ें फाइन मोटर में आती हैं. इंसोमिया, नींद नहीं आती. जो लोग बहुत ज़्यादा कैफीन लेते हैं वो रात रात भर जगे हुए पाए जाएंगे. इनफैक्ट एक समय पे स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए कॉफ़ी लेते थे. हेडेक्स होते हैं, नर्वसनेस, डिजीनेस. अगर आपने नहीं लिया है तो ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं बॉडी में. ऐसा लोग मानते हैं. इट्स ओके. इनफैक्ट मेरे क्लाइंट हैं जो कहते हैं कि जब मैं कॉफ़ी नहीं पीता हूँ तो मेरा तो किसी बात में मन ही नहीं लगता है. मेरे को तो ध्यान ही नहीं होता है कि मैं कर क्या रहा हूँ. आई नीड एटलीस्ट अ बिग मग ऑफ कॉफ़ी इन द मॉर्निंग. उसके बिना तो मेरा दिन शुरू ही नहीं हो सकता मैम. तो एनीवे उनकी और बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम लोग कॉफ़ी को हमने साइड में रख दिया है. उनकी बड़ी वाली प्रॉब्लम्स पे हम लोग पहले ध्यान देंगे. सो कैफीन कॉजेज फिजिकल डिपेंडेंस, यानी इसके बिना हमारे काम रुक जाते हैं. जैसे आपने बोला सर दर्द हो जाता है अगर नहीं लिया. सो अगेन सर दर्द उसके बिना होता है या उसकी वजह से होता है, दैट्स अ बिग रिसर्च क्वेश्चन. और हम अपने को किस बात पे कन्विंस कर लेते हैं उसकी बात होती है. पीपल से मैं बहुत अच्छे मूड में होता हूँ जब मैंने अपना एडिक्टिव ले लिया है. मैं बहुत ही प्लेजरेबल होता हूँ. मतलब मेरे से बेटर इंसान नहीं है फैमिली में अगर इफ़ आई एम नॉर्मली टेकिंग माई एडिक्शंस. बहुत अच्छा इंसान हो लाइक हाँ, पर मुझे नहीं मिलता है तो आई एम नॉट अ गुड पर्सन, तो मेरा मूड ख़राब रहता है. सो ये एक्सक्यूज़ेस या ये डिनायल फेज़ कहते हैं हम लोग क्लिनिकल लैंग्वेज में, इसको डिनायल फेज़ कहते हैं कि हमारी लाइफ में जो इश्यूज़ हो रहे हैं उनको हम साइडलाइन करके वो काम करें जिसके हमें डिपेंडेंस है. सो उसको करने के लिए हम अपने सेल्फ डिफेंसेस तैयार कर लेते हैं. जैसे आई नो पीपल who have issues with weight but they cannot stop themselves from eating chocolates या sweets. अब उसमें जब आप कैसे होते हैं, अरे भाई हम लोग इंडियंस हैं, इंडियंस में ना खाना तब तक ख़त्म नहीं होता जब तक एक मीठा ना. मिठाई के बिना क्या जिएंगे यार. खाने के लिए तो एकदम सच है. देखिए बिल्कुल सच, एकदम सच है, एकदम सच है. हाँ, तो मतलब बेसिकली खाने के लिए तो हम जी रहे हैं और खाने में मिठाई नहीं होगी तो फिर हम जी कर क्या करेंगे. कमाया हुआ खाया हुआ सब चला गया. सो वी हैव वेरियस डिफेंस. अगेन डिजीज़ प्रिवेंशन और डिजीज़ क्योर नेवर से यू लीव समथिंग. इट ऑलवेज गाइड्स यू टू हाउ टू हैव इट इन अ पर्टिकुलर क्वांटिटी. If you have been having it too much, then probably for a period of time you will be told to withdraw completely. But उसके बाद भी even diabetic people who are suffering from diabetes, they are allowed to have sweets थोड़ी बहुत to maintain their sugar levels. ऐसा उन्हें कभी नहीं कहा जाता कि आप बिल्कुल छोड़ दीजिए और कुछ मत खाइए और सब कुछ, ऐसा नहीं होता है. But yes, a control is required, which every disease and every cure person will tell you. मिनिमम कंजम्पशन ऑफ कैफीन, ये जानना ज़रूरी है कि हम चार कप ऑफ कॉफ़ी पीते हैं तो
ठीक है तब तक, पर उससे ज़्यादा जा रहा है, अगेन मैं कप की बात कर रही हूँ, तो भाई कप जो है इतना बड़ा होता है, इतना बड़ा कप नहीं होता है, कप्पा होता है, उसको कप्पा कहते हैं, राइट? सो इतना बड़ा कप होता है। सो अदर स्टडीज से दैट फ्यू मोर कप्स ऑफ कॉफ़ी आर नीडेड टू डेवलप डिपेंडेंस। यही चाय के भी केस में है, ऑल्दो चाय इज़ अ हर्ब, उससे नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगेन अगर आप पूरे दिन में 15 बार चाय पी रहे हैं तो वो कंपल्सिव हो गया, तो वो एक डिजीज़ हो गया, वो आप इसका मतलब वो कंपल्सिवली कर रहे हैं, जब तक आपने नहीं की तब तक आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, यू आर डिपेंडिंग ऑन इट। सो अगेन वॉट एवर वी आर डूइंग इट हैज़ टू बी इन अ पर्टिकुलर मेजर। लेट्स टॉक अबाउट निकोटीन, टोबैको में निकोटीन होता है। किस किस प्रकार के टोबैको इंडिया में यूज़ किए जाते हैं, कोई मेरे साथ शेयर करेगा? सर जी, टोबैको के क्या क्या प्रकार हैं इंडिया में, या बॉम्बे में बताइए? बीड़ी, सिगरेट, च्यूइंग, चिरूट, मछली, यस, खैनी, तंबाकू, पान में खाते हैं वो खैनी होती है, राइट? पान मसाला, यस, कुछ रह गया? गुटखा, मसाला, और 120 जाफरानी, यस, हुक्का, हुक्के में भी होती है। ये सारे प्रकार हैं टोबैको के, या इनफैक्ट टोबैको में इनहेलेंट्स भी आते हैं, नस्वार, स्नफ जिसे कहते हैं, देखिए ना कितने अलग अलग टर्म्स है, तपकीन, नस्वार, स्नफ, यस। सो एवरीबडी हैज़ डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज फॉर इट, बट इन सब में निकोटीन पाया जाता है। स्मोकिंग कैन बी स्टिमुलेटिंग और रिलैक्सिंग, नाउ इट डिपेंड्स ऑन योर मूड एंड योर डोसेज। जो एडिक्ट है उसके लिए रिलैक्सिंग है, स्टिमुलेटिंग है, जो एडिक्ट नहीं है उसके लिए कॉफ क्रिएटिंग है। यानी अगर आप स्मोक कर रहे हैं और मैं नहीं पीती हूँ तो वो मेरे लिए डिस्टर्बिंग हो जाएगा, मुझे डिस्टर्ब हो जाएगा, राइट? सो इसमें लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट बढ़ जाता है निकोटीन लेने की वजह से, रेस्पिरेशन, फास्ट रेस्पिरेशन, कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरीज, स्टिमुलेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसे हम कहते हैं ना कि एक सिगरेट पी ली तो बहुत अच्छा इफेक्ट आ गया, बहुत यू फील वेरी गुड अबाउट इट, दैट इज योर स्टिमुलेट, आपका दिमाग वो स्टिमुलेट हो गया, सो यू फील वेरी गुड अबाउट, अलर्ट, या। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ निकोटीन आर सीन टू बी कैंसर रिजल्टिंग, अफेक्टिंग योर वाइटल ऑर्गन्स, रेस्पिरेटरी इश्यूज होते हैं बिकॉज ब्रीदिंग, यहाँ तक कि जो 10 साल 15 साल से निकोटीन ले रहे हैं किसी भी फॉर्म में, आप उनको देखिए उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है बॉडी की, थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ के उनको जाने को बोलिए आप, यू विल सी द, उनको ब्रीदिंग इश्यूज हो जाते हैं, हाँफने लगते हैं। तो उस एज के हिसाब से उतनी नहीं होनी चाहिए, बट दे गो डाउन ऑन दैट स्पिरल। जब पीपल ट्राई टू किक दिस हैबिट तो अक्सर दे गो थ्रू दिस काइंड ऑफ विड्रॉल सिम्टम्स, उन्हें एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन, हेडेक, फटीग, थका थका फील होता है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है, ये सारी चीज़ें काफ़ी डिटेल में होने लगती हैं व्हेन पीपल इमीडिएटली ट्राई टू किक दिस हैबिट। देयर इज़ अ पर्टिकुलर प्रोसीजर ऑफ किकिंग दिस हैबिट। कई बार लोग बोलते हैं ना हमारी विल बड़ी स्ट्रांग है, हम तुरंत किक कर लेंगे, तो वहाँ मैं जवाब देती हूँ आपकी विल बहुत स्ट्रांग है, आप तुरंत किक कर लेते हैं, और जब आपकी विल थोड़ी सी कमज़ोर होती है आप तुरंत उसे पकड़ लेते हैं। So, in place of quitting such things with a go, it is always suggested कि हम उस पर काम करें, धीरे धीरे उस प्रोसेस को अपने ऊपर अडाप्ट करें। Body gets used to these chemicals which you have been taking from outside. So, we need to create a space where body can go back to its original form and heal. Like a drug also, Yeah. you live. Right. So we need, and you know the brain has an awesome capacity to heal. हमारा दिमाग जो है वो ऊपर वाले ने ऐसा बनाया है कि जो किसी भी प्रकार के झटके, किसी भी प्रकार के इश्यूज से हील कर लेता है, बट वी नीड टू गिव टाइम टू इट। अगर हमने बहुत जल्दी में ये आदतें छोड़ने की कोशिश करते हैं तो रिलैप्स बहुत तेज़ी से होता है। ऑफन यू विल फाइंड पीपल कि वो रिहैब होम्स में गए, कई दिन तक कुछ नहीं लिया, बहुत स्ट्रांग थे, एंड द मोमेंट दे कम बैक और एक न्यू ईयर की पार्टी, रिलैप्स। क्योंकि
दे गो इनटू कंप्लीट एब्स्टिनेंस प्रोग्राम, और एकदम से जब उनको नॉर्मल ट्रिगर्स के पास छोड़ा जाता है कि कोई पी रहा है और वो देख रहे हैं, तो इमीडिएटली उनको रिलैप्स हो जाता है. सो वी क्लिनिशियन सजेस्ट कि देयर इज अ प्रोसीजर फॉर इट. जो चीज़ आपने इतने सालों में अपने शरीर का हिस्सा बनाई है, उसे कुछ समय दीजिए अपने शरीर से बाहर जाने के लिए, अपने शरीर को नॉर्मलाइज होने के लिए. बिकॉज अब शरीर जो है वो इन केमिकल्स का डिपेंडेंट हो गया है. हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्सटर्नल चीज़ों की आदत पड़ गई है. तो धीरे धीरे जब हम उन्हें छोड़ते हैं तो दिमाग जो है, बॉडी जो है, वो वापस से अपने ओरिजिनल स्टेट में जाने लगती है. बट अगर हम एकदम से छोड़ते हैं, यू नो, लाइक आई हैव सीन पीपल आस्किंग अपने हस्बैंड से, आज छोड़ो, अभी का छोड़ो, अभी अभी हमसे प्रॉमिस करो, अगर आज नहीं छोड़ा तो शादी गई. दैट डजंट हैपन. इवन किसी को ऐसे पुश करना भी गलत है. आप इमोशनली किसी को पुश करेंगे और वो आपके सामने छोड़ भी देगा, तो वो बिलीव मी आपके पीठ पीछे से करेगा. एंड वो ज़्यादा डेंजरस है when a person is hiding and being an addict, because then you may lose that person one day. Very recently, just near my clinic, there is a case which I came across of a 45-year-old man जिन्होंने करीब 90 days तक कुछ भी नहीं लिया था, और उनके घर वालों को ऐसा ही पता था कि उन्होंने छोड़ दिया है स्मोकिंग. एंड एकदम से रात में उनकी तबीयत खराब हुई और उनको एडमिट किया गया. 3 दिन में ही इज डेड. 45 years old मैन. पिछले 15 साल की निकोटीन की हैबिट वो छोड़ रहे थे, लेकिन उनकी फैमिली को ऐसा पता था कि वो छोड़ रहे थे, बट एक्चुअल में वो नहीं छोड़ रहे थे. जब कोई नहीं होता था तो वो एक्सेसिव करते थे, और जब व्हेन ही वाज एडमिटेड और उनके टेस्ट किए गए तो पता लगा, अरे इन्होंने छोड़ा कहाँ था, ये तो वाइफ को दिखाने और बच्चों को प्लीज़ करने के लिए दिखा रहे थे कि हमने छोड़ दिया. तो एक्चुअली में उनको पता भी नहीं लगा कि उन्होंने कितनी ले ली इतने दिनों में, छुप छुप के. सो प्रेशराइजिंग से बेटर है कि हम एक प्रोसेस क्रिएट करें रिकवरी प्रोग्राम का. दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन फोर्सिंग अ पर्सन कि नहीं ये तुम्हारी बुरी आदत है, तुम छोड़ो. दैट मेंटल प्रिपरेशन, उसका पूरा एक प्रोसेस है, दैट नीड्स टू बी फॉलोड हियर. निकोटीन का इफेक्ट आपके लंग्स पे, ये एक नॉर्मल आदमी का लंग है, ये एक अनहेल्दी लंग है. यू कैन सी इधर की लाइंस कितनी क्लियर है, और इधर देखिए आप. इनफैक्ट आजकल PVR सिनेमा में उन्होंने टोबैको, एंटी टोबैको कैंपेन शुरू किया है. तो हर मूवी के पहले वो आपको सब दिखाते हैं. टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल का पूरा उन्होंने एक छोटी सी क्लिप बनाई है कि एवरी डे देयर आर 50 पेशेंट्स जो टोबैको से सफ़र कर रहे हैं, और वो आते हैं, और कितने लोग कितनी कम उम्र में सर्वाइव नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ टोबैको. उनका लंग्स कंप्लीटली चला जाता है. लेडीज़ ज़्यादा हैं. ये भी कुछ प्रकार के नशे हैं, इनहेलेंस कहते हैं जिन्हें हम. अलग अलग चीज़ों में नशे पाए जाते हैं. आई हैव सम क्लाइंट्स हु आर एडिक्टेड टू विक्स वेपोरब. वो लेके ही घूमते हैं, अपने रुमाल में लगा के रखते हैं. इंक, प्रिंटर्स इंक, जो आप न्यूज़पेपर में डाइल्यूटर जो यूज़ होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग इनहेलेंट, हर वक्त उसको सूंघते रहते हैं लेके. सम अदर काइंड्स ऑफ इनहेलेंस, कफ सिरप्स भी, उनकी स्मेल भी लोगों को अच्छी लगती है. कफ सिरप ऑफ कोर्स पीना तो अच्छा लगता ही है क्योंकि उसमें काफ़ी केमिकल्स होते हैं. उसके अलावा कई प्रकार के ये केमिकल्स हैं, एथर, क्लोरोफॉर्म, हैलोथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे लाफिंग गैस कहते हैं हम. सो दीज आर द होल इनहेलेंस जिनको लेके लोग एडिक्ट हो जाते हैं कई बार, एंड दे एंजॉय इसकी जो स्मेल है उसको इनहेल. इवन जो नस्वार कहते हैं हम, जैसे स्नफ, अच्छा फील हुआ, दैट्स इनहेलिंग, दैट्स एन इनहेलिंग एडिक्शन. हेरोइन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं. ओके, हम ड्रग्स को लेके एडिक्शन कैसे हो जाता है हमें, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं. हमारा जो मास्टर ब्रेन है यानी दिमाग, जैसा मैंने आपसे पहले बताया, डोपामाइन एक केमिकल हमारे दिमाग में, न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि हमारे प्लेजर से रिलेटेड है. तो नेचुरली अगर मुझे चॉकलेट अच्छी लगी खाने में, तो मेरा ध्यान कहाँ जाएगा शॉप पे, सबसे चीप पहली चीज़ पे,
खरीद लेते हैं, भले ही पैसे कम हैं, छोटी खरीद लो, बड़ी खरीद लो, लेट मी बाय. वाई? बिकॉज आई लाइक्ड इट. नाउ इफ आई एम ईटिंग चॉकलेट इन प्लेस ऑफ फूड, नेचुरली शुगर में हाई होता है, तो अगर मैंने चॉकलेट खा लिया तो खाना खाने का जगह ही नहीं रहेगा. तो मैं अगर फूड की जगह चॉकलेट्स लेने लगूं तो बाकी चीज़ें छोड़ के मुझे खाली चॉकलेट के इंग्रेडिएंट्स ही बॉडी में जा रहे हैं. एंड दैट कैन बी प्लेजर रेजिंग एज वेल एज दैट कैन बी वेट रेजिंग. मेरे वेट के लिए, मेरे मोटापे के लिए वो बुरा हो सकता है, या मेरी हेल्थ के लिए, और अगर मुझे डायबिटीज़ है तो और ही बुरा हो सकता है. तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है. मैं ड्रग का नाम नहीं ले रही हूँ, ड्रग और स्ट्रॉन्ग होता है. किसी भी प्रकार का ड्रग एडिक्शन और स्ट्रॉन्ग होता है कि हमें कोई भी चीज़ सूंघने, पीने, स्मोक करने से आहा वाली फीलिंग आती है, दैट इज़ एडिक्शन. एंड वो एडिक्शन के लिए हमारा ब्रेन क्रेव करता है. शुरुआत कैसे होती है? कभी दोस्तों के साथ गए, कोई पी रहा था, कोई ले रहा था, हमने ले लिया स्टार्टिंग में, इनिशियल ईयर्स में, तब उतने पैसे भी नहीं थे. चलो धीरे धीरे वो अच्छी फीलिंग के पीछे हम जाने लगते हैं. यानी कि एक बार सैटरडे संडे एंजॉय करते थे, धीरे धीरे अब फ्राइडेज भी ऐड हो गया, फिर धीरे धीरे एक दिन और ऐड हो गया. अब जब भी कभी काम कम है, चलो वी लुक फॉरवर्ड टू इट. माइंड स्टार्ट्स क्रेविंग फॉर दोज केमिकल्स. वी कंडीशन आवर माइंड टू लुक फॉरवर्ड टू इट कि ये फीलिंग अच्छी है, ये यूफोरिया, आहा वाली फीलिंग, प्लेजर, अच्छा लग रहा है. मैनी पीपल लुक एट इट एज रेस्पाइट, जो मैंने अपने टॉक का टाइटल दिया है, अ डेडली रेस्पाइट. सारी दुनिया के झंझट छोड़ के चलो थोड़ा पी लेते हैं और थोड़ा इन्जॉय कर लेते हैं, रिलैक्स फील हो जाएगा, सब कुछ भूल जाऊँगा, थोड़ी चढ़ेगी ना तो सब कुछ भूल जाऊँगा. द मोस्ट कॉमन थिंग, हार्ट ब्रेक्स होते हैं ना जिनके, सबसे ज़्यादा कॉमन, एक दो चढ़ाऊँगा तो भूल जाऊँगा दुनिया ने मेरे साथ क्या किया है. हमारी मूवीज़ भी वही पिक्चर पोर्ट्रे करती हैं, राइट? जो कि एक्चुअली में जो जितने लोग अल्कोहल से सफ़र करते हैं, अल्कोहलिज्म से, टिपिकली हमारे ये सारे पार्ट्स अफेक्ट होते हैं जब हम टोबैको बहुत यूज़ करते हैं या अल्कोहल यूज़ करते हैं. यू कैन सी योर हार्ट, योर लिवर, योर किडनी, योर जेनाइटल्स, आपका हर भाग जो बॉडी का है वो इन चीज़ों से बहुत सिवियरली अफेक्ट होता है. ये इतने प्रकार के कैंसर भी हैं हमारी बॉडी में जो हो जाते हैं. या ये इसको कहते हैं जेली लिंक कर्व. ये यूएस का एक मॉडल है, जेली लिंक कर्व, यानी एक ऐसे यू है. तो जब इंसान शुरू करता है नशा लेना, व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग एडिक्टेड, व्हाट हैपन्स, थोड़ा सा लिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे अच्छा लगा और थोड़ा लिया, फिर वी स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. फिर लेते तो हैं पर घर पे नहीं बताते हैं क्योंकि गिल्टी फील होने लगता है. गिल्टी फील होने लगता है तो फिर छुप छुप के पैसे या छुप छुप के रिसोर्सेज अरेंज करते हैं. ये पूरा एक डाउनवर्ड कर्व होता है. और ये नीचे जहाँ देख रहे हैं ना, जहाँ नॉट बन रहा है, वो फेज सबसे ख़राब होता है. नशे की वजह से आप कभी नाली में पाए गए, नशे की वजह से आपने चोरी की, नशे की वजह से आपने किसी को गालियाँ दे दी, नशे की वजह से आपने बीवी को मारा, नशे की वजह से आपने बच्चे को इग्नोर किया. सो ये सारी कमज़ोरी जो है हमारे अंदर, जो कि नशे के पहले नहीं थी, वो हमारे अंदर आने लगती. एंड ये जो नीचे का फेज़ है, ये सबसे चैलेंजिंग होता है. कई बार फैमिली बहुत कंसर्न होती है तो वो किसी के पास लेके जाती है इलाज करने के लिए. एंड इट इज़ टफ. ये जो ऊपर का रूट है, हमेशा ऊपर चढ़ना डिफ़िकल्ट होता है, पहाड़ पे भी. व्हेन यू डू क्लाइंबिंग इट इज़ टफ. रिलैप्सेस होने के चांसेस रहते हैं, वापस डिजीज़ वापस आके स्ट्राइक करती है. दिस हैपन्स. सो दिस गोज़ अप. जब हम ऊपर जाते हैं तो हमने कंसल्टेशन लिया, दवाइयाँ ली, एक सही प्रोसीजर लिया, रिहैबिलिटेशन होम में गए, अपने को डिटॉक्स कराया, काउंसलिंग ली, फैमिली सपोर्ट, काफ़ी दिनों के लिए, काफ़ी महीनों के लिए ऐसी जगहों को अवॉइड किया जहाँ हमें नशा याद आता था या नशा. आई नो पीपल जो कि जिन्होंने किराने की दुकान जाना बंद कर दिया. क्यों? क्योंकि शायद उनको वहाँ अपने नशे की चीज़ मिल जाए तो उनको ट्रिगर हो जाएगा, तो उनके घर वालों ने उनसे सामान ही बनवाना बंद कर दिया. या what I say for
ट्रीटमेंट जिसे हम रिकवरी प्लान कहते हैं, विल पावर इज़ अ मसल। लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे में है, मेरे में नहीं है, बट मेरा ऐसा मानना है हर एक में है। व्हेन यू आर हंग्री एंड यू वांट फूड, तो अगर आपको बोला जाए कि ज़रा बाहर जाके खा लो, है, तो आप इमीडिएटली उठो के जाओगे। सो वहाँ तक जाने की पावर कहाँ से आती है? हमारी विल पावर से। भूख लगी है भाई, क्रेविंग हो रही है, खाना खाना है, जाना है, तो आप कितनी देर कंट्रोल करोगे? इन द सेम वे व्हेन यू आर डिजीज्ड एंड यू वांट टू बी ओके, दैट विल पावर इज विद इन यू। द मोर यू चैलेंज दैट विल पावर, द मोर यू प्रैक्टिस दैट विल पावर, इट इज़ गोइंग टू नॉर्मल। आपने देखा है ना एक्सरसाइज में, जिस मसल को हम ज़्यादा, मेरे बिना एक्सरसाइज कई बड़ी बड़ी हैं, लेकिन काफ़ी लोगों की बॉडी बिल्डर्स की विद एक्सरसाइज बड़ी होती है, तो जो मसल बढ़ानी होती है उस पर ज़्यादा वेट दिया जाता है, ज़्यादा उठाया जाता है। सो इन द सेम वे विल पावर एक ऐसी मसल है जिसको हम जितना प्रैक्टिस करेंगे वो हमें उतना स्ट्रॉन्ग बनाती है ओवर द पीरियड। या 7 C's जो मैं कहती हूँ एडिक्शन के, हम अपने आप को बोलते हैं कि नहीं 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 मेरी गलती नहीं है, डिनायल फेस, आई डिडंट कॉज इट, मेरी वजह से नहीं हुआ है, तो ऐसे ही लग गया मेरे पीछे, मुझसे अपने आप क्योर नहीं होगा, मैं अपने आप को कैसे क्योर करूं? छोड़ता हूं फिर वापस आ जाता है, कंट्रोल नहीं होता। सो कॉज, क्योर, कंट्रोल, पर एक दूसरा पार्ट भी है, आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। और अगर आप अपनी चिंता नहीं करेंगे तो कौन करने वाला है? दैट्स द ऑपोजिट मॉडल ऑफ इट। यू नीड टू कम्युनिकेट कि आपके फीलिंग्स क्या हैं जब आप छोड़ रहे हैं या आप जब नशे के आदी हैं, तो क्या फील होता है, किन फीलिंग्स के पीछे जाते जाते आपको नशे का आदत लग जाता है। हेल्दी चॉइसेस, नशा नहीं तो क्या, एडिक्शन नहीं तो क्या। लाइक इफ you have a habit of chewing tobacco, so what can you chew other than tobacco? You can chew soft, chewing gum, various things, there are many things, depends on what you like. Yes, of course the same pleasure नहीं आएगा, लेकिन आपको अपनी विल पावर से उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा कि नहीं ये नहीं लूँगा पर कुछ और खा सकता हूँ। You have to celebrate yourself. What do we mean by celebrating? ओम जी, एंजॉय तो हम नशे में भी करते हैं, एंजॉय तो नशे में सबसे ज़्यादा करते हैं। हाउ डू वी सेलिब्रेट आवरसेल्व्स? Yes, that is our normal definition of celebrating. When I say celebrate yourself, do you need external factors to enjoy life? Enjoy yourself. Being thankful, having eyes, ears, body, everything, isn't it a celebration in itself? There are so many people who are living without a nice house, without money, without good clothes. Isn't so many reasons you have for celebration? Why do we need addiction to celebrate? ज़िंदगी का नशा अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग है, तो हमें बाहर के नशे की ज़रूरत क्या है? हम अपनी डेफिनेशन अगर नशे से हटाएं तो कैसे उसको पॉजिटिव करके सेलिब्रेट कर सकते हैं लाइफ को? बिल्कुल, आप नशे के पहले कैसे थे? तब भी तो आप लाइफ जीते थे, तब भी तो लाइफ एंजॉय करते थे, पर आपने अपने एंजॉयमेंट को एक चीज़ से अटैच कर लिया है, नशे से, और अब आपको कोई और चीज़ अच्छी नहीं लगती। बट द डे यू सेलिब्रेट योर सेल्फ, यू विल नॉट हार्म योर सेल्फ। एडिक्शन इज हार्मिंग सेल्फ, सो व्हेन यू सेलिब्रेट योर सेल्फ यू डोंट हार्म योर सेल्फ। इट्स वेरी सिंपल थिंग। कोई फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये चेयर बहुत प्रेशियस है, बहुत अच्छी लगती है, जिस पे कीड़ा बैठा हुआ है, तो ये जो चेयर है इसको मैं बहुत छुपा के रखूँगी, ज़्यादा वेयर एंड टेयर नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना, इसको पेंट करना, इसको धोना पोंछना। आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट, अरे ये बहुत मेरी फेवरेट चेयर है, डोंट वी डू इट? कोई सामान हमें पसंद है, कोई टी शर्ट पसंद है, कोई कपड़ा पसंद है, वी टेक केयर ऑफ इट, अच्छे साबुन में धोना। हाउ अबाउट योर बॉडी? हाउ अबाउट योर सेल्फ? व्हेन इट इज़ एडिक्शन वी डोंट डू इट। एडिक्शन में हम वो सेलिब्रेशन भूल जाते हैं, हमें लगता है हम इंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन हाउ अबाउट मेंटेनेंस? हाउ अबाउट लुकिंग आफ्टर योर सेल्फ, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ? हमें एक्सटर्नल चीज़ों से इतना प्यार हो जाता है, हाउ अबाउट योर सेल्फ? आपकी अपनी बॉडी, आपका अपना जो बीइंग है, एक आत्मा है, एक शरीर है आपका, वो उसकी क्या, उसकी लॉन्गेविटी। अक्सर जो लोग एडिक्ट होते हैं वो
हॉस्पिटलाइज होते हैं, उनकी फैमिलीज़ परेशान होती हैं, वो खुद भी बहुत तकलीफ़ से गुजरते हैं. सो ये सेलिब्रेशन तो नहीं हो सकता जब हम इतनी तकलीफ़ दे रहे हैं अपने शरीर को, उल्टियाँ कर रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो गए, इंजेक्शन लग रहे हैं, डॉक्टर सुइयाँ चुभो रहे हैं, दिनों दिनों तक आपको सलाइन लगा है, कहीं बेहोश हो गए. ये सेलिब्रेशन तो नहीं हो सकता, राइट? सो हाउ डू वी सेलिब्रेट? यू कैन हैव योर वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग. आपको एडिक्शन से पहले क्या अच्छा लगता था? आई हैव सो मेनी पेशेंट्स जिनको फोटोग्राफी का शौक़ है, तो उन्होंने वापस फोटोग्राफी शुरू करी, या जिन्हें थिएटर में इंटरेस्ट था उन्होंने उसको रिजुविनेट किया, रीडिंग में इंटरेस्ट था, नशे में पढ़ के उन्होंने वो सब कुछ खो दिया. वेरी मेनी थिंग्स कैन गिव यू द सेम प्लेजर. Very many things. You have to find out with a strong will which kind of pleasure can you look into. Any questions? Thank you very much.